اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا حکومت نے شہباز شریف کے خلاف جتنے بھی الزامات لگائے وہ جھوٹے تھے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے شہزاد اکبر کاغذ لہرا کر شہباز شریف کے خلاف مختلف کیسز بارے بتاتے تھے۔ شہباز شریف کو مختلف طریقوں سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ شہباز شریف پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کیس سے ابھی تک کچھ نہیں نکل سکا۔ شہزاد اکبر پاکستان میں ثبوت نہیں دے سکے، وہ لندن ہائی کورٹ کو کیسے دیں گے؟ روز تماشا کیا جاتا ہے، روز الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ایف آئی اے کے اندر 1.25 سال ہو گیا، پچھلے ہفتے چلان جمع کرایا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے 56 والیوم آ گئے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے 4000 ڈاکیومنٹس آ گئے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے 100 وٹنسز آ گئے ہیں۔ کدھر ہیں وہ وٹنس جو نہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، نہ لاہور ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، نہ لندن کے اندر ثبوت دے سکتے ہیں، نہ ڈیلی میل کو ثبوت دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دیتے ثبوت؟ کیونکہ 1 روپے کی دھیلے کی نہ ثبوت ہے کرپشن کا، نہ کرپشن ہوئی ہے۔ کوئی اور ملک نہیں بلکہ پاکستان کی پستی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے خود کو استعمال ہونے دیا، پیسے کے لیے قوم کے مفاد کے خلاف خارجہ پالیسی بنائی، امداد اور ڈالر کے لیے ملک کی ساکھ کو قربان کیا، خود ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ اپنے اوپر مسلط کر دی۔ نظر پاکستانی عوام کے مفادات نہیں بلکہ ڈالر پر تھی۔ وزارت خارجہ میں تقریب سے خطاب میں کہا تحریک انصاف کی 3 سال کی حکومت میں دنیا کا پاکستان کے بارے میں نظریہ اور رویہ بدل گیا ہے۔ آپ کوئی استعمال ہونے دیا، ایڈ کے لیے ہم ان کی ریپوٹیشن کو قربان کیا، اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہم نے اپنی فارن پالیسی بنائی صرف پیسے کے بجائے یہ کہ کوئی ہائی پرنسپل تھا یا پاکستان کے لوگوں کے مفادات فوج ڈالرز تھے۔ نچلے سائیکلز پہ آتے ہیں، ہمیں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ہم غلط فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے جو 3 سال میں ہم اپنی تعریف نہیں کرتے، لیکن اگر آپ دنیا کی ایٹیٹیوڈ پاکستان کی طرف دیکھیں وہ مختلف ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں شکست کا اعتراف، کہتے ہیں پی ٹی آئی نے غلطیوں کی قیمت چکائی۔ وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا تحریک انصاف نے کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں غلطیاں کی اور قیمت چکائی، غلط امیدواروں کا انتخاب شکست کا سب سے بڑا سبب بنا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب سے ذاتی طور پر خیبر پختونخوا کے دوسرے مرحلے سمیت پورے ملک کے بلدیاتی انتخابات کی نگرانی کریں گے۔ آئندہ تحریک انصاف مزید قوت کے ساتھ ابھرے گی۔ اور مولانا کا اقتدار میں آنا بڑی بدقسمتی ہے، پی ٹی آئی نہ رہی تو کوئی قومی جماعت نہیں رہے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے حکومت جب بھی مشکل میں ہو مریم نواز کوئی بونگی مار کر مسئلہ حل کر دیتی ہیں۔ زرداری صاحب کی باتوں سے لگتا ہے ان کی ڈیل نہیں ہوئی، یہ ان کی خواہش ہے۔ بلاول اور مریم نواز جیسے سیاسی بونوں کی کوئی اوقات نہیں۔ فواد چودھری کے ایک تیر سے 3 شکار، ملک میں سب اچھا، اپوزیشن شور مچاتی ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک ریٹروگریسو سوسائٹی کی علامت ہے، اور اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستان میں سب کچھ صحیح نہیں ہے۔ مذہبی طور کے اوپر متشدد پالیسیز کے حامی ہیں، ان کو اقتدار ملنا کسی بھی سوسائٹی کے لیے کوئی حوصلہ کن بات تو نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا جو اقتدار میں آنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات۔ پھر جو مذہبی شدت پسند جماعتیں ہیں جیسے جے یو آئی ہے، ایک ایسی سیاسی جماعت ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے تھا۔ پی ایل پی کا ابھرنا یا جمعیت، اس سے تو پاکستان الٹیمیٹلی نیچے جائے گا۔ نون لیگ اور پی ایم ایل این کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کے بونے جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا قد بڑا کریں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ ایک حلقے میں 3-3 4-4 لوگ آپ کی ایک ہی پارٹی کے الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے تو الیکشن ہاریں گے ہی، اور کیا ہوگا۔ ٹکٹس جو ہیں وہ کسی کو ملے ہیں، 2-2 3-3 لوگ جو ہیں وہ الیکشن کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کے بغیر پاکستان کی جو سیاست ہے ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی۔ مریم نواز جیسے بونے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، جو جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہے، اس طرح کے بونوں کو موقع ملے گا کہ وہ بڑے ہوں۔ جے یو آئی کا تو بڑی مجھے مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک ریٹروگریسو سوسائٹی کی علامت ہے، اور اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستان میں سب کچھ صحیح نہیں ہے۔ مذہبی طور کے اوپر متشدد پالیسیز کے حامی ہیں، ان کو اقتدار ملنا کسی بھی سوسائٹی کے لیے کوئی حوصلہ کن بات تو نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا جو اقتدار میں آنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات۔ مریم نواز صاحبہ کی ماشاءاللہ نئی ٹیپ چل رہی ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں نے
पता नहीं बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट की है। मरियम नवाज जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल ख़राब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। हज़रत ज़रदारी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो मुझे बड़ी मायूसी झलकती नज़र आई है। यूँ लग रहा है कि ज़रदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली, अदरवाइज़ अगर डील मिल गई होती तो जलसों में इस तरह की बातें नहीं करते। ज़रदारी साहब की भी मुझे लगता है कि ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, और इसलिए वो अब फौज के ऊपर देखिए इनका क्या है, एक दिन अगर डील की उम्मीद लग जाए तो ये सारे जो हैं वो पॉलिश लेके पहुंच जाते हैं, अगले दिन इनकी उम्मीद खत्म हो जाए ऑल फॉल बकने लगते हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में निशान इबरत बन गई। इमरान खान थोड़ी सी जो इज्जत है बचाकर अवाम की जान छोड़ दें। बदतरीन महंगाई नहली पर इनके साथ यही होना था। पीटीआई वाले अवाम में जाएं तो हेलमेट पहन कर जाएं। मरियम नवाज का मशवरा, कहा JUI की कामयाबी हमारी कामयाबी है। मौलाना को मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया तो पूरी सपोर्ट करेंगे। इमरान खान को ये चाहिए कि अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। पीटीआई का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। कहर है अल्लाह ताला का, कोई खौफ है खुदा का, मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। उनसे अदालत में सवालात हुए पिछली हेयरिंग्स पे कि कोई सबूत है तो दिखाएं, कोई मरियम के खिलाफ एक कागज है तो दिखाएं। जब वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो अब आप देखें एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं। बहुत जल्दी वापस आएंगे, वो भी आने को बेचैन है, उनका मुल्क है, उनकी मिट्टी है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वापस आएंगे। आज हमारी शिकस्त पर हंसने वाले कल आंसू बहाएंगे। हारें या जीतें, खैबर पख्तूनख्वा हमारा घर है। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा PTI का कला था और रहेगा। हमारे वोट हमारी ही जमात में तकसीम हुए। मुस्लिम लीग नून का KP से तो सफाया हो गया, पंजाब में भी नून लीग सिर्फ चंद हलकों तक महदूद रह गई है। मुआविन खसूसी के मुताबिक मरियम नवाज ने बिलावल की तरह अपने बेटे को सियासत में लॉन्च करने की कोशिश की। वो गलत तरीके से मीडिया इदारों को इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत में होते हुए शफाफ इंतखाबात का इनेकाद किया। मौलाना साहब जवाब दें, क्या आप डील के नतीजे में इंतखाबात जीते हैं? हम KPK से जीते, हम KPK से हारे। KPK वाकई हमारा घर है। इसी तरीके से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, GB कश्मीर, पाकिस्तान का एक एक चप्पा जो है वो हमारा घर है। आपने देखा कि पिछले 15 दिन एक शादी के नाम पर आपने पूरे मीडिया को हाईजैक रखा, और आपने जैसे बिलावल को बार बार लॉन्च किया गया, आपने भी अपनी नई लॉन्च की तैयारी की, अपने और अपने बेटे को पॉलिटिकली दोबारा आपने लॉन्च करने की कोशिश की। KPK है, उसके इलेक्शन में आपकी जीत हुई है, तो अगर आप गौर से रिजल्ट कार्ड पढ़ें तो आप नीचे से ऊपर पहले नंबर पर आए हैं। ये दुरुस्त है कि JUI फे को कुछ सीटें मिली हैं वहां पर, लेकिन जब KPK का हतमी नतीजा आएगा और कंक्लूसिव नतीजा आएगा पूरे सूबे का, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात होगी। तो जो आप बार बार कह रहे थे कि ये हुकूमत चोरी के इलेक्शन की है, तो क्या इस चोरी के इलेक्शन की हुकूमत के अंदर जो आपने सीटें जीती हैं वो आज के बाद हलाल हो गई हैं? क्या आपने जो इलेक्शन जीता है जिन सीटों पर, वहां पर इलेक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ है? खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी पर तहरीक इंसाफ की मरकजी कोर कमेटी ने सूबाई पार्लिमानी बोर्ड तहलील कर दिया। इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात जानने के लिए पार्टी की मरकजी कोर कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। कमेटी ने गवर्नर शाह फरमान और वजीर आला महमूद खान भी तलब कर लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं, पाकिस्तान का बाबर क्रूज मिसाइल 1B की रेंज में इजाफे का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल बाबर 1B रेंज में इजाफे का तजुर्बा इंतहाई कामयाब रहा। डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंज और चेयरमैन नेस्कॉम डॉक्टर रजा समर ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली और दीगर भी मौजूद थे। DG SPD ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की।
कराची में सूबे के सबसे बड़े अमराज कल्ब के अस्पताल के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज, मरीज रुल गए। एहतजाज के बायस रफीकी शहीद रोड पर कायम दीगर 3 बड़े अस्पतालों में भी मरीज और तीमारदारों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन कहते हैं अगर जायज़ मुतालबात फौरी पूरे ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रुकन असम्बली खदीजा उमर ने तबलीगी जमात के हवाले से करारदाद पेश की, जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तबलीगी जमात और दीगर दीनी जमातें इस्लाम की दावत व तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दे रही हैं। तबलीगी जमात का दहशत गर्दी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तारीख गवाह है कि ये लोग आज तक कभी किसी ऐसे काम में मुलविस नहीं रहे। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज शुजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तबलीगी जमात के हवाले से जो आज मुस्लिम लीग काफी रुकन असम्बली खदीजा उमर फारूकी ने करारदाद पेश की, वो आज मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। चौधरी परवेज इलाही का इस मौके पर कहना है कि तबलीगी जमात मुनज़्ज़म और आलमी जमात है, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम कर रही है। इसका दहशतगर्दी से दूर दूर का ताल्लुक नहीं। ये तो इस्लाम और अमन के सफ़ीर हैं और पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र असासा हैं, जो पूरी दुनिया में तबलीग इस्लाम से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये ऐसी जमात है जिसमें तमाम तबके के लोग शामिल हैं। तबलीगी जमात ने गरीब और अमीर की तफरीक खत्म करके ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा इस हवाले से आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का लिया गया कर्जा हुकूमत ने 5 साल में वापस करना है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 5 साल में गुज़िश्ता हुकूमतों का $55 अरब कर्ज वापस करेंगे। शरीफ बरादरान के दौर में बिजली के महंगे मुआहदे हुए, जिस वजह से बिजली की कीमत ज्यादा हुई। इस वक्त मुआशी इशारे मस्बत हैं। फसलों की रिकॉर्ड पैदावार से किसानों को भी इजाफी आमदनी मिली। कहा जा रहा है माइशत नीचे चलेगी। अगर ऐसा है तो फिर इतनी ज्यादा तरक्की कैसे हो रही है? एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए प्रोसिक्यूटर की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नए प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया उस्मान गनी चीमा की नासाज तबीयत की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकते। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, जुनेद सफदर और पार्टी रहनुमाओं के साथ अदालत में पेश हुए। रेफरेंस पर आइंदा समाअत 18 जनवरी को होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार को टिकट देने का फैसला मुशावरत से नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का वोट सही बॉक्स में गिरा है और फैसला ठीक आया। इमरान खान आजकल ये गाना गाते हुए मिलेंगे, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एक सवाल पर कहा मीडिया वाले सवाल पूछकर चले जाते हैं, बाद में हम मुकदमात भुगतते हैं। 3 साल में हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हालत सबके सामने है। लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर वार। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं पीटीआई वाहिद जमात जिसने मुल्क में गालम गलोच की रवायत डाली। एहसन इकबाल बोले इमरान नियाजी सिर्फ ऑपोजिशन से इंतकाम के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुल्क की बदकिस्मती है कि इसे एक चंदा मांगने वाला वजीर आज़म मिल गया। चेयरमैन नायब साहब, आपको कल इन बातों का जवाब देना पड़ेगा कि जो आप लोगों से झूठे बयान दिलवाते रहे हैं, जो आप बात आपसे लिए जाएंगे और जब वक्त आएगा तो हम दरख्वास्त गुजार बनेंगे। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप जरा जो सीपैक के चेयरमैन उनकी बातें सुन लें। इस हुकूमत के एहलकारों के बयानात आपस में नहीं मिलते, उनकी बातें नहीं मिलती। पेश अवाम रहे हैं, न बिजली है न गैस। 3.25 साल में पाकिस्तान की मईशत ईंट से ईंट बजा दी। इमरान नियाजी साहब और उनकी हुकूमत ने 24 घंटे 24/7 बेसिस पे सारा हफ्ता पूरा साल सिर्फ इंतकामी एजेंडे पर काम किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है मरियम नवाज के पास कहने को कुछ नहीं। हुकूमत एक ऐसी अपोजिशन का सामना है जो एक जगह इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तहरीक इंसाफ ने इन नाम नेहाद सियासी जमातों की तरह भांजों और भतीजों को टिकट नहीं दिए। महंगाई मार्च की बात करते हैं, क्यों ये मार्च की तारीख दे रहे हैं? उनको पता है कि लोग मोबिलाइज नहीं कर सकते, लोग इनके कहने पे बाहर नहीं आएंगे। यही तो वजह है कि 4 महीने की तारीख दे रहे हैं, वरना कोई देता है 4 महीने की तारीख? ऐसी ऑपोजिशन अगर हो तो हुकूमत को तो वैसे ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो आपस में इकट्ठे खड़े ना हो सके, जो आपस में एहतजाज ना कर सके, जो 4 लोग सड़कों पर ना लेके आ सके। आपके ऊपर जो इल्जाम लगे
आप उनके जवाब भी नहीं देते। आप कोर्ट्स के बाहर खड़े होकर सियासी बयानबाजी करते हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस केस को जल्द अज जल्द चलाया जाए। तो दरख्वास्त होगी कि इसको डेली हेयरिंग करें और उसमें ज़्यादा तारीखें ना दी जाए। हमें सिंध का टूथलेस मॉडल नहीं चाहिए जहाँ पर हम नाम के बल्दियाती इदारे बनाएं लेकिन उनके हाथ में ना पैसे हो ना इख्तियार हो और फिर वो हाल हो जो आज कराची का हाल है। अब महंगाई को हमने काबू करना है। हमने अगले 1.5 साल के अंदर अपने तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करना है और आवाम से किए गए वादों को पूरा करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में जाले उम्मीदवारों की हिमायत करने वाले अवाम से इजहार तशक्कुर, अनथक मेहनत करने वाले कारकुनान को शाबाश। अपने बयान में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह जाले उम्मीदवारों ने बेहतरीन मुकाबला करके हरीफ उम्मीदवारों को मुश्किलात से दो चार किया। मैदान खाली ना छोड़ना हमारी अव्वलीन तरजीह होती है। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी एक मुअस्सर कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आई है। इंशाअल्लाह आम इंतखाबात में बाजी जियालों के हाथ में होगी। बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, वफाकी वज़रा और स्पीकर की मुदाखलत करके इलेक्शन के नताइज को रोका। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने नाअहल हुक्मरानों को मुस्तरद कर दिया। सईद गनी ने कहा, सिंध में कोई नया बल्दियाती कानून नहीं लाए, 2013 के कानून में ही तरमीम की गई। सईद गनी ने पीपल्स पार्टी के वोट बढ़ने का दावा किया। एमक्यूएम के बारे में कहा, वो अवामी मसाइल पर बात करने को तैयार नहीं। जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने अवाम के मूड का आपको बता दिया है और ये वो खैबर पख्तूनख्वा है जो पीटीआई का गढ़ था। ये वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पीटीआई ने जन्म लिया। वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पीटीआई ने बाकी तमाम जमातों को एक तरह से फारिग कर दिया था। उस इलाके में अगर पीटीआई का ये हशर हो सकता है, सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा? सूबाए सिंध में कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं आया। बल्दियाती निज़ाम वही है जो 2013 के कानून के तहत बना था। उसको बेहतर करने के लिए उसमें तरामीम जरूर की है। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो जमात जो यहाँ ठेकेदार बनी हुई है, उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता और वो खामोश है। जो खुद को कराची का ठेकेदार समझते थे, उन्होंने कराची को ठेके पर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एमक्यूएम पाकिस्तान और पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मौजूदा हुक्मरान सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की सियासत कर रहे हैं। गवर्नर सिंध बल्दियाती कानून के बिल पर दस्तखत न किए तो सूबाई हुकूमत खुद ही बिल मंजूर कर लेगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों की असर नो तरतीब देने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस के लिए वो नताइज नहीं आ रहे। एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद ने वोटर लिस्टों में वोटर्स के इंदराज के वक्त 1 महीना बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं, स्टाफ की कमी और मुनासिब ट्रेनिंग ना होने के बायस काम बेहतर नहीं हो रहा। हमारे नुमाइंदे सूबाई इलेक्शन कमीशन के अफसरान को इस बारे आगाही दे चुके। फौरी तौर पर दरपेश मसाइल का तदारुक होना चाहिए। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुश्तरका कार्रवाई, गैर मुल्की शराब की भारी खेप पकड़ी गई। शराब की बड़ी स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। 5 स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। जब्त की जाने वाली शराब की मालियत 216 मिलियन पाकिस्तानी है। मारूफ माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी ब्रेन हेमरेज से कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कराची के टीपू सुल्तान रोड पर वाक़े नजम मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डॉक्टर अजीज़ अकारब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। डॉक्टर ताहिर शमसी ने 1995 में पहली बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुतारिफ कराया था। उन्होंने कोरोना की पहली और शदीद लहर में मुतासरा मरीजों के प्लाज्मा से इलाज भी दरियाफ्त किया था। डॉक्टर ताहिर शमसी ने 100 से ज़ायद तहकीकी मज़ामीन भी लिखे। अफगानिस्तान में बढ़ते बहरानों की वजह से बोझ पाकिस्तान पर आएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वज़ीर आज़म को अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा फिक्र रही है। इमरान खान ने वज़ारत ख़ारजा आकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वज़ीर आज़म करप्शन से लड़ते और इसका भरपूर मुकाबला करते हैं। हमें मुल्क को खुद मुख्तार और अपने पाँव पर खड़ा हुआ बावकार पाकिस्तान बनाना है। मुल्क की तरक्की के लिए मजबूत मुआशी पॉलिसी की ज़रूरत है। 15 अगस्त के बाद मुझे याद है आपको ये मुसलसल ये फिक्र रही कि वहाँ जो एक बहरानी कैफियत पैदा हो रही है, भूख की, अफलास की, गुर्बत की और जो इकनॉमिक मेल्टडाउन की, तो उसका जो बोझ पाकिस्तान पर आएगा उसका भी मुझे एहसास है। अल्हम्दुलिल्लाह 41 सालों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान फोकस्ड OIC-CFM करवाने में, कामयाब करवाने में अल्लाह ने हमारी मदद की और वो एक इजलास मुनक़िद हुआ।